حضرت عمر اندر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ عمر کیا اب بھی وقت نہیں ہے کہ تم سچ کو سمجھ سکو، جس پر حضرت عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی سارے مسلمانوں کے سامنے اسلام قبول کر لیا۔ ہائی گائز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل، دس از ریئیکٹوپیڈیا، اور آج جو ہم ویڈیو دیکھنے والے ہیں دیٹ از اباؤٹ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو ہم اسلام کے دوسرے خلیفہ کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ سو یس، اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے کہ جب آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت ملی تو آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی کیسی پالیسیز بنائی، کیسی اسٹریٹجیز بنائی، جس کی وجہ سے اسلام کا دائرہ اتنا زیادہ بڑھ گیا اور اسلام کے جھنڈے ہر جگہ لہرانے لگے۔ سو یس، وداؤٹ ویسٹنگ اینی فردر ٹائم، لیٹس گیٹ انٹو دا ویڈیو اینڈ سی واٹ از دیر ان دا ویڈیو۔ صرف 2 سال حکومت کرنے کے بعد پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے چلے گئے، لیکن وفات سے پہلے ہی انہوں نے سب کو کلیئرلی بتا دیا تھا کہ ان کے بعد مسلمانوں کا دوسرا خلیفہ کون ہوگا؟ عمر بن خطاب۔ اسلام آج دنیا کا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ہے، جسے آلموسٹ 200 کروڑ 2 بلین لوگ فالو کرتے ہیں، اور دنیا میں ایسا کوئی سیکنڈ نہیں گزرتا جس میں دنیا کے کسی کونے میں آزان نہ دی جا رہی ہو۔ اس سب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت بڑا رول پلے کیا، جنہوں نے صرف کچھ ہی سالوں میں مسلمانوں کی اتنی بڑی ایمپائر بنائی جو ان سے پہلے دنیا میں کسی کے پاس بھی نہیں تھی، الیگزینڈر دی گریٹ اور ایون مصر کے فرعون کے پاس بھی نہیں۔ لیکن یہ سب آخر انہوں نے کیا کیسے؟ حضرت عمر کی پرسنالٹی کو سمجھنے کے لیے اس زمانے کے مکہ شہر کو سمجھنا لازمی ہے، کیونکہ مکہ میں پچھلے کئی صدیوں سے ایک ہی قبیلے قریش کا کنٹرول تھا، اور آہستہ آہستہ قریش کا یہ قبیلہ اتنا بڑھ چکا تھا کہ قریش خود بھی بہت سارے قبیلوں میں ڈیوائڈ ہو چکا تھا، اور ان قبیلوں کے درمیان اب مکہ میں پیس برقرار رکھنے کے لیے ہر قبیلے کو الگ الگ ذمہ داریاں دی گئی۔ قریش کے 3 سب سے طاقتور قبیلے تھے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے بنو ہاشم کے پاس قریش کی ریلیجیس پاور تھی، کیونکہ مکہ کعبہ کی وجہ سے عرب کے ریلیجن کا سینٹر تھا، اور بنو ہاشم کے لیڈرز تھے عبد المطلب اور ان کے بعد ابو طالب۔ قریش کا دوسرا طاقتور قبیلہ تھا بنو امیہ۔ یہ قبیلہ قریش میں صرف اور صرف ایک چیز کی وجہ سے مشہور ہے، پیسہ، اسی لیے مکہ کی ساری اکانومی یہی فیملی بنو امیہ کنٹرول کرتے، اور اس قبیلے کا لیڈر تھا ابو سفیان۔ اینڈ لاسٹلی قریش کا تیسرا پاورفل قبیلہ بنو مخزوم تھا، جو مکہ میں واریئرز کی فیملی تھی، اسی لیے مکہ میں ہر وار جنگ کی پلاننگ یہی فیملی کیا کرتی تھی، اور سب سے زیادہ ہتھیار بھی اسی فیملی کے پاس ہوتے تھے۔ اور بنو مخزوم کا لیڈر سب سے پاورفل لیڈرز میں سے ہوتا تھا، جن میں سے ایک کو ابو جہل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق ان تینوں قبیلوں میں سے ایک کے ساتھ بھی نہیں، ان کا تعلق قریش کے ایک دوسرے قبیلے بنو عدی سے تھا، جو قریش کے ایمبیسڈرز کا قبیلہ تھا، مطلب قریش کا ترجمان، اسپوکس پرسن زیادہ تر اسی قبیلے سے ہوتا تھا، اور جب بھی قریش کے آپس میں کبھی لڑائیاں ہوتی ان لڑائیوں کو بھی یہی قبیلہ حل کیا کرتا، اور ان کا لیڈر تھا خطاب، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد۔ اسی لیے حضرت عمر کی پرسنالٹی کی یہ سائن کہ وہ کسی بھی بڑے مسئلے کو بہت ہی آسانی سے بات چیت اور ڈیبیٹ کے ساتھ حل کر لیا کرتے۔ انہیں اپنے والد کے قبیلے بنو عدی سے ملی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرسنالٹی کا ایک دوسرا اینگل بھی تھا، جو ہم سب بار بار سنتے رہتے ہیں کہ وہ بہت ہی غصے والے انسان تھے، اور بات بات پر دوسرے کا سر کاٹنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ حضرت عمر کی پرسنالٹی کا یہ ٹریٹ انہیں اپنی والدہ حنتمہ بنت ہشام سے ملا تھا، جن کا تعلق بنو عدی سے نہیں بلکہ بنو مخزوم سے تھا، جو قریش کے وار اور جنگ کو سنبھالتے۔ اس بنو مخزوم کے قبیلے کے مائنڈ سیٹ کو سمجھنے کے لیے یہی کافی ہے کہ اس قبیلے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کزن کا نام خالد بن ولید تھا۔ مطلب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو بات چیت سے اچھی طرح سمجھانا اپنے والد سے سیکھا، اور جو لوگ باتوں سے نہ سمجھے انہیں ڈنڈے اور تلوار سے سمجھانا انہوں نے اپنے والدہ کے خاندان سے سیکھا۔ دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ خلیفہ بننے کے بعد ایک دن حضرت عمر مکہ کے اس علاقے سے گزرے جہاں وہ بچپن میں اونٹ چرایا کرتے تھے، اور فرمایا کہ اللہ کی کیا شان ہے کہ میری زندگی میں ایک وقت ایسا تھا کہ میں یہاں اونٹ چرایا کرتا تھا، اور صرف تھوڑی سی غلطی پر بھی میرا باپ مجھے بہت مارا کرتا تھا، اور آج ایسا دن ہے کہ میرے اور اللہ کے درمیان دنیا میں کوئی بھی نہیں۔ مطلب اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کی سب سے بڑی ایمپائر کے لیڈر اور دنیا کے سب سے طاقتور انسان بن چکے تھے۔ ان سے پاورفل کوئی بھی نہیں تھا سوائے اللہ کے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 12 साल बाद पैदा हुए और जवानी में बहुत टॉल और मस्कुलर होने की वजह से बहुत जल्द ही मक्का के सबसे ताकतवर रेसलर बन गए। मतलब कहा जाता है कि जब वो किसी ग्रुप में चल रहे होते थे तो ऐसा लगता था कि बाकी सारे जमीन पर चल रहे हैं और वो ऊंट पर बैठे हुए हैं। मतलब आज के जमाने में अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 6 फुट 6 इंच या 6 फुट 7 इंच की हाइट। फॉर एग्जाम्पल ये है नरेंद्र मोदी, एवरेज हाइट, और इनके पास खड़े ये हैं कतर के अमीर तमीम बिन हमाद। हजरत उमर और बाकी एवरेज लोगों में भी इतना ही हाइट डिफरेंस होता होगा या फिर इससे भी ज्यादा। इस सब के बाद आहिस्ता आहिस्ता हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अपने कबीले बनु अदी की लीडरशिप संभालने लगे और मक्का के बड़े बड़े सरदारों के साथ मीटिंग्स में बैठने लगे और कुछ ही अरसे में कुरैश के सबसे टैलेंटेड एम्बेसडर बन गए। और इसके साथ ही उन्होंने अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस भी स्टार्ट किया, जिसमें वो मक्का, यमन, सीरिया के बीच हर वक्त ट्रैवल करते रहते थे। और जब फाइनली हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की एज 27 हुई तो मक्का में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान कर दिया और इस्लाम की दावत देना शुरू कर दी। लेकिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कुरैश का एम्बेसडर और स्पोक्स पर्सन होने की वजह से इस्लाम की पहले सख्त मुखालफत और मुसलमानों के खिलाफ अपने मामू अबू जहल के साथ खड़े हो गए। इस्लाम से पहले हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की रेपुटेशन कोई इतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि वो बहुत सारे एंटी इस्लामिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते थे, मतलब शराब और जुआ वगैरह, और इस्लाम से इतनी नफरत करते थे कि अपने एक गुलाम को सिर्फ मुसलमान होने की वजह से एक दिन उन्होंने इतना मारा कि खुद उसे मार मार कर थक गए। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया आहिस्ता आहिस्ता हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की पोजीशन मुसलमानों के बारे में थोड़ी बदलने लगी। इसीलिए एक दिन जब वो मक्का में गुलाम के पास से गुजरे जिसे उसके मालिक अबू जहल ने मुसलमान होने की वजह से मार मार कर ऑलमोस्ट बेहोश कर दिया था, जब हजरत उमर ने देखा कि किसी और ने उसकी मदद नहीं की तो खुद जाकर उसे हाथ दिया और उसे उठाया, जिस पर उस गुलाम ने हजरत उमर से कहा कि वल्लाह आप उन दोनों में से बेहतर है, जिसकी हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को समझ नहीं आई। इस गुलाम ने उस दुआ की तरफ इशारा किया था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से की थी कि या अल्लाह मक्का के इन 2 उमरैन में से एक को इस्लाम की तरफ ला, एक उमर बिन खत्ताब और दूसरा आम्र बिन हिशाम। अबू जहल मक्का के कुरैश को मुसलमानों से दूर करने के लिए अबू जहल और अबू सुफियान बार बार मक्का के बड़ों की मीटिंग्स बुलाकर उन्हें ये समझाने की कोशिश करते थे कि मोहम्मद की वजह से हमारा रिलीजन तो खराब हो ही चुका है, लेकिन उसके साथ साथ हमारी इकोनॉमी और इज्जत भी बहुत खराब हो चुकी है। इन सारे मीटिंग्स में बार बार बैठकर एक दिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु आखिर बहुत तंग आ गए तो उन्होंने आखिर एक ऐसा फैसला किया जो इससे पहले करने की किसी में भी हिम्मत नहीं थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का फैसला, और अपनी तलवार लेकर सीधा दार अरकम की तरफ रवाना हुए जो मक्का में मुसलमानों का हेडक्वार्टर था। लेकिन अल्लाह ने हजरत उमर को इस सबसे बड़े गुनाह के दौरान ही पलट दिया। वो ऐसे कि जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु दार अरकम की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें अपना बेस्ट फ्रेंड मिला जो इससे कुछ अरसा पहले सीक्रेटली मुसलमान हो चुका था, लेकिन उसने हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को नहीं बताया। उसने हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को रोका और कहा, उमर कहाँ जा रहे हो? जब हजरत उमर ने उसे बताया तो वो आदमी बिल्कुल डर गया। उसने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाने से पहले अपने घर की तो खबर लो। जिस पर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु समझ गए और सीधा अपनी बहन के घर की तरफ रवाना हुआ। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की बहन पहले ही अपने हस्बैंड सईद बिन जैद की वजह से मुसलमान हो चुकी थी। सईद बिन जैद हजरत उमर के बहनोई होने के साथ साथ उनके चचा के बेटे भी थे और उनके चचा जैद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले ही मक्का के रिलीजन को छोड़ चुके थे और हमेशा मक्का के रिलीजन के खिलाफ बोलते रहते थे। वो कहते थे कि जब हम सबको पता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक खुदा की इबादत करते थे और उनके दूसरे बेटे इसहाक की औलाद बनी इसराइल भी एक ही खुदा की इबादत करते हैं, तो फिर हमने इस्माइल की औलाद ने इतने सारे खुदा कहाँ से लाए? इसीलिए जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के चचा की फैमिली को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्लाम का पता चला तो उन्होंने बहुत तेजी से इस्लाम कबूल कर लिया। हजरत उमर सीधा अंदर गए और जाकर सईद बिन जैद को मारने लगे। उनकी बहन फातिमा ने उन्हें बचाने की कोशिश भी की, लेकिन हजरत उमर ने गुस्से में उन्हें भी मार दिया, जिससे उनका खून बहने लगा। तो हजरत उमर ने जब अपनी बहन का खून देखा तो उनको आखिर तरस आया और कहा, मुझे कुरान दिखाओ कि आखिर इसमें लिखा क्या है। और फिर कुरान पढ़ने के बाद फाइनली वो मुसलमान हो गए। ये सारी स्टोरीज हाउस ऑफ बुक्स की प्रॉफिट मोहम्मद सीरीज में डिटेल से मेंशन है। इस्लाम कबूल करने के बाद वो दोबारा दार अरकम की तरफ रवाना हुए, लेकिन वहां अब तक किसी को भी पता नहीं था कि हजरत उमर इस्लाम कबूल कर चुके।
तो जब उन्होंने हजरत उमर को बाहर तलवार लेकर खड़ा हुआ देखा तो कुछ मुसलमान तो बिल्कुल डर गए, लेकिन हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, जो इससे कुछ ही अरसा पहले मुसलमान हुए थे, उन्होंने कहा कि उमर को आने दो, अगर उसकी नीयत साफ है तो ठीक है, लेकिन अगर उसकी नीयत सही नहीं है तो मैं उसी की तलवार से उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। हजरत उमर अंदर आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि उमर, क्या अब भी वक्त नहीं आया कि तुम सच को समझ सको? जिस पर हजरत उमर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाकी सारे मुसलमानों के सामने इस्लाम कबूल कर लिया, जिस पर वहां मौजूद सारे मुसलमान जोर जोर से अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगे। अकॉर्डिंग टू मैनी सोर्सेस ये नबूवत का 6ठा साल था और हजरत उमर की एज 32 या 33 साल थी। और अब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ मक्का में मुसलमानों की तादाद 50 हो चुकी थी, जिनमें से 40 मर्द और सिर्फ 10 औरतें थी। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के इस्लाम कबूल करने के बाद मुसलमानों के हालात बिल्कुल बदल गए, क्योंकि इससे पहले जिसने भी इस्लाम कबूल किया था वो ज्यादातर बहुत कमजोर लोग, इसीलिए हमेशा छुप कर इस्लाम कबूल करते थे। लेकिन हजरत उमर इस्लाम कबूल करने के बाद सीधा अपने मामू अबू जहल के घर गए और उन्हें बताया कि मैं इस्लाम कबूल कर चुका हूँ, जिस पर अबू जहल ने कहा कि ये हो ही नहीं सकता कि तुम्हारे जैसा आदमी इस्लाम कबूल कर ले, क्योंकि हजरत उमर की पिछली सारी लाइफ इस्लाम के बहुत ही ऑपोजिट थी। जिसके बाद हजरत उमर सीधा जमील बिन मामूर के पास गए और उन्हें भी अपने मुसलमान होने के बारे में बताया, क्योंकि जमील मक्का का लाउड स्पीकर था और ये ऐसा आदमी था कि इसके पेट में ज्यादा देर तक कोई बात नहीं रहती। तो जब उसे इतनी बड़ी न्यूज का पता चला तो वो सीधा भागा और मक्का की गलियों में ऐलान करने लगा कि उमर ने हमारे दीन को छोड़ दिया। हजरत उमर से पहले मुसलमान मक्का में छुप छुप कर नमाज पढ़ा करते थे, लेकिन हजरत उमर के बाद अब सारे मुसलमान सबके सामने खुलकर नमाज पढ़ने लगे और इवन काबा के अंदर जाकर भी नमाज अदा करने लगे। इस सब के बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी सारी जिंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम के लिए वक्फ कर दी और कुछ अरसे बाद मुसलमानों के साथ मक्का में अपने खानदान और सारी ताकत छोड़कर मदीना की तरफ हिजरत कर गए। मदीना आने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के मुहाजिरीन को, जिनके पास ना कोई घर ना कारोबार कुछ भी नहीं था, उनको एक एक अंसार के घर में सेटल किया। हजरत उमर भी एक अंसारी के साथ सेटल हुए और इन दोनों ने अपने टाइम को ऐसे डिवाइड किया कि एक दिन वो सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते और हजरत उमर उनका बिजनेस संभालते, और फिर दूसरे दिन हजरत उमर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते और वो सहाबी बिजनेस को चलाते। हिजरत के सिर्फ 2 साल बाद जंग बदर में हजरत उमर हजरत हमजा की लीडरशिप में जंग में शामिल रहे। जंग जीतने के बाद हजरत उमर की राय ये थी कि हमें कैदी नहीं रखने चाहिए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर की राय इसके ऑपोजिट थी, जिसके बाद कुरान की एक आयत नाजिल हुई जिसमें क्लियरली हजरत उमर की राय को प्रेफर किया गया। इस डिसीजन और बाकी कुछ डिसीजंस की वजह से हजरत उमर का नाम अल फारूक रखा गया, व्हिच मींस हक को पहचानने वाला, सच का साथ देने वाला। बदर के 1 साल बाद ओहद की जंग और उसके बाद खंदक की जंग में भी हजरत उमर मुसलमानों की फौज में रहे, और उसके बाद सुलह हुदैबिया के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर को मक्का वालों से डील करने को कहा, लेकिन हजरत उमर ने यह मशवरा दिया कि आप मेरे बजाय हजरत उस्मान को डील करने के लिए भेजें, क्योंकि अब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के मामू अबू जहल मर चुके थे और उनके बाद मक्का का नया पावरफुल सरदार अबू सुफियान, जो हजरत उस्मान की कबीले वाला था, जिसे हम इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन कर चुके हैं। जिसके बाद मक्का वालों ने मुसलमानों के सामने एक ऐसी डील रखी जिसे देखकर लग रहा था कि मुसलमान इसे साइन करके बहुत बड़ी गलती करेंगे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की राय को छोड़कर इस डील पर मोहर लगा ली, जिस पर कुछ सहाबा बहुत ही कंफ्यूज और नाराज हुए, जिनमें से एक हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे। वो सीधा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और उनसे पूछा कि क्या आप सच्चे नबी नहीं हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बिल्कुल। तो हजरत उमर ने कहा कि क्या हमारे दुश्मन काफिर नहीं है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बिल्कुल। जिस पर हजरत उमर ने कहा तो फिर क्यों हम उनकी हर बात मान रहे हैं, क्यों हम इनके सामने कमजोर बन रहे हैं? जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं अल्लाह का रसूल हूं और मैं अल्लाह के हुक्म के खिलाफ कोई काम नहीं करता। इससे हजरत उमर खामोश हो गए, जिसके बाद आइंदा आने वाले कुछ सालों में जब उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग सुलह हुदैबिया की वजह से इस्लाम की तरफ आने लगे, तो उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले की समझ आई और फिर हमेशा अपने इन बातों की वजह से अल्लाह से माफी मांगते रहे। सुलह हुदैबिया के बाद इस्लाम इतने तेजी से फैलने लगा कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के कजन खालिद बिन वलीद ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। इसके बाद हमेशा हजरत उमर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हर डिसीजन और हर जंग में साथ ही रहे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर की बेटी हजरत हफ्सा से शादी भी की। फिर आखिर मक्का फतह होने के बाद जंग तबूक में हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुसलमानों की फौज को सपोर्ट करने के लिए अपनी सारी वेल्थ का आधा हिस्सा डोनेट किया। गज़वे तबूक के कुछ ही अरसे बाद
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए, लेकिन जब ये खबर हजरत उमर तक पहुंची तो वो इतना शॉक हुए कि उन्हें इस पर यकीन ही नहीं आ रहा था। तो वो मस्जिद नबवी में खड़े हुए और अपनी तलवार निकाल कर कहा कि जो भी ये कहेगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो चुके हैं, मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा कहते थे कि एक दिन मुसलमान रोमन और पर्शियन एम्पायर दोनों को फतह करेंगे। तो अब ये कैसे हो सकता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सब हुए बगैर दुनिया से चले जाए? लेकिन हजरत उमर को इस बात का पता नहीं था कि अल्लाह एक दिन उन्हीं के हाथों ये दोनों एम्पायर फतह करेगा। जब मस्जिद नबवी के अंदर सारे गम और कंफ्यूजन में थे तो हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिंबर पर चढ़े और समझाया कि हमारा मिशन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद खत्म नहीं हुआ, बल्कि अब असली मिशन शुरू हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के वक्त मदीना के कुछ लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अपना नया बादशाह चूज करने लगे। तो अचानक हजरत उमर और अबू बकर वहां पहुंचे। उसके बाद जो हुआ हम इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन कर चुके हैं। इन शॉर्ट हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब देखा कि वहां हालात आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ रहे हैं तो उन्होंने हालात को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले हजरत अबू बकर के हाथ पर बैत कर ली, जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बाकी सारों ने भी आकर हजरत उमर के हाथ पर बैत कर ली। और इस तरह हजरत अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वजह से मुसलमानों के पहले खलीफा बने। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खलीफा बनने के बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमानों के इस एम्पायर के सेकंड इन कमांड थे। मतलब अगर हजरत अबू बकर बादशाह थे तो हजरत उमर उनके वजीर आजम थे, और उन दोनों ने बाकी सहाबा के साथ मिलकर पूरे अरब को दोबारा यूनाइट करने की कोशिश की। आखिर जंग यमामा के बाद अरब तो दोबारा यूनाइट हो गया, लेकिन इस जंग में बहुत सारे हाफिज कुरान शहीद होने की वजह से ये खतरा था कि कहीं कुरान के बारे में मुसलमान आपस में इख्तिलाफ में ना पड़ जाए। इसीलिए सबसे पहले हजरत उमर के जहन में आइडिया आया कि हमें फौरन कुरान को एक बुक की शक्ल में कंपाइल कर लेना चाहिए। मतलब आज दुनिया के सारे कुरान जो बुक्स की तरह लिखे गए हैं, उन सब का थोड़ा सा क्रेडिट हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जाता है। अरब यूनाइट करने के बाद खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हुक्म पर मुसलमानों ने सीधा पर्शियन एम्पायर पर हमला कर दिया और उनसे कुछ ही महीनों में ये सारा इलाका फतह कर लिया। और पर्शियन एम्पायर पर हमले के साथ साथ मुसलमानों ने एक ही टाइम पर रोमन एम्पायर पर भी हमला कर दिया। लेकिन पर्शियन एम्पायर की तरह मुसलमानों को रोमन एम्पायर में इतनी कामयाबी नहीं मिल रही थी। खालिद बिन वलीद रोमन एम्पायर में नहीं बल्कि पर्शियन एम्पायर में थे। इसीलिए हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खालिद बिन वलीद की तरफ एक लेटर भेजा कि वो सीधा अपनी आधी फौज लेकर रोमन एम्पायर की तरफ जाएं। जैसे ही खालिद बिन वलीद वहां पहुंचे, वो बहुत तेजी से रोमन एम्पायर के सारे इलाके को फतह करने लगे और आखिर रोमन एम्पायर की मेन सिटी दमिश्क, दमेस्कस को हर तरफ से घेर लिया। नाउ मुसलमानों की इस एम्पायर को चलाने में हजरत अबू बकर और हजरत उमर की राय ज्यादातर हमेशा सेम ही होती थी, सिवाय एक मसले के। और ये मसला आगे जाकर बहुत ही कंट्रोवर्शियल मसला बना, और वो मसला ये था कि खालिद बिन वलीद को कैसे हैंडल किया जाए। क्योंकि खालिद बिन वलीद अब तक सारे फैसले खुद ही किया करते थे और सब कुछ करने के बाद ही मदीना की तरफ लेटर भेजते थे। लेकिन हजरत उमर को अपने कजन खालिद बिन वलीद की ये आदत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। इसीलिए जब हजरत उमर खलीफा बने, उन्होंने कुछ ही अरसे बाद मुसलमानों के सबसे बड़े जनरल को अपने ओहदे से हटा दिया, जिस पर खालिद बिन वलीद उनसे बहुत नाराज हुए थे। इस कंट्रोवर्शियल मसले को फिर हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। सब्सक्राइब। जैसे ही मुसलमानों की फौज यहाँ तक पहुंची तो मदीना में मुसलमानों के खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तबीयत बिल्कुल खराब हो गई, जिसे देखकर उन्हें पता चल गया कि ये अब उनके दुनिया में आखिरी दिन। इसीलिए उन्होंने सारे बड़े सहाबा को बुलाया और उन्हें कहा कि अब मैं और तुम्हारा खलीफा नहीं रहा, तुम आपस में मशवरा करके जिसे भी चाहो अपना नया खलीफा सेलेक्ट कर दो। जिस पर सहाबा ने थोड़ा सोचा और वापस हजरत अबू बकर से कहा कि ये काम हम आपके हवाले करते हैं कि आप जिसको भी सही समझे अपने बात उसी को मुसलमानों का खलीफा बना दे। तो हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बड़े बड़े सहाबा में से एक एक को बुलाया और उनसे पूछा कि उमर के बारे में तुम्हारी क्या राय है। जिस पर एक सहाबी ने कहा कि यस, हजरत उमर बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी बहुत ही सख्त है। तो हजरत अबू बकर ने हजरत उमर को डिफेंड करने के लिए कहा कि उमर सिर्फ इसलिए सख्त बनता है क्योंकि वो मुझे हमेशा सॉफ्ट देखता है, लेकिन जब वो खुद खलीफा बनेगा तो उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल बदल जाएगी। इन सारे सहाबा से पूछने के बाद हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सख्त बीमारी में हजरत उस्मान को अपने पास बुलाया और उन्हें कहा कि लिखो कि मैं खलीफा अबू बकर अपने बाद मुसलमानों का नया खलीफा। ये कहते ही अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई और वो बेहोश हो गए। तो हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इससे आगे खुद ही लिखा कि अपनी बात नया खलीफा उमर को नामजद करता हूं।
थोड़ी देर बाद जब उन्हें होश आया तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक किया, और सारे बड़े सहाबा को बुलाकर कहा कि क्या तुम सबको वो कबूल होगा जिसे मैं खलीफा बनाऊंगा? तो वहां सब ने कहा कि यस। जिस पर हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि मैं ना अपने बाद अपने बेटे को खलीफा बनाकर जा रहा हूँ और ना अपने खानदान में से किसी फर्द को, बल्कि मैं उसे खलीफा बना रहा हूँ जिसे मैं सबसे बेहतर समझता हूँ, और वो है उमर बिन खत्ताब। मॉडर्न डेमोक्रेसीज के अलावा अगर दुनिया की सारी हिस्ट्री देखी जाए तो ऐसा बहुत कम ही हुआ है कि किसी बादशाह के मरने के बाद उसका बेटा या उसके खानदान में से कोई बादशाह ना बना। नाउ जिस तरह हजरत उमर के इस्लाम कबूल करने के बाद मुसलमानों के हालात मक्का में बिल्कुल बदल गए थे, उसी तरह अब उनके खलीफा बनने के बाद पूरी दुनिया की तारीख हमेशा के लिए बदलने वाली थी, क्योंकि अगले सिर्फ चंद सालों में हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इतनी बड़ी एम्पायर बनाई जो उससे पहले दुनिया में किसी के पास भी नहीं थी। और इस एम्पायर को फतह करने के बाद वहां पर एक ऐसा सिस्टम बनाया कि आज तक 1400 साल बाद भी उन सारे इलाकों पर मुसलमानों की हुकूमत है, सिवाय एक छोटे से इलाके। सो यस, दिस वाज द वीडियो एंड काफ़ी कुछ बताया गया है आप हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में बहुत ही डिटेल तरीके से, एकदम वेरी बिगनिंग से, जब आप हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु कुश्ती किया करते थे और वो ऊंट चराया करते थे, और कैसे वो अपने कबीले के चीफ्स में से माने जाते थे। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नबूवत का दावा किया और ये खबर मक्का में फैल गई, तो कैसे हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु भी गुस्से में आ गए जब उन्होंने देखा कि कैसे लोग हमारे खुदाओं को छोड़ के दूसरे रिलीजन की ओर जा रहे हैं, तो कैसे वो अलग अलग तरीके से सोचने लगे। और जब उनको ये भी पता लगा कि बिल आखिर ये सब घूमते हुए मेरे घर तक आ गया है, कैसे वो अपने बहन के घर गए और गुस्से में उनको भी पीटना शुरू कर दिया और उनके खाविंद को भी मारना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ अरसे के बाद उनको एहसास हुआ कि वो क्या कर रहे हैं, और वो अचानक से अपनी बहन को कहते हैं कि ये किताब कुरान है ना जिसकी तुम तिलावत कर रहे थे, मुझे दो, मुझे भी देखना है। जिसके ऊपर उनकी बहन उनको कहती है कि नहीं, आप पाक नहीं हो, पहले आप खुद को पाक कर लो। और फिर वो कैसे कुरान की तिलावत शुरू करते हैं और कैसे अल्लाह की कुदरत गर्दिश लेती है और हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के दिल को इस्लाम के लिए नरम कर देती। और फिर कैसे हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं और वहाँ पे ईमान की दौलत को, इस्लाम की दौलत को कबूल कर लेते हैं। और उसके बाद कैसे उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के इस्लाम लाने से पहले जब मुसलमान इबादत किया करते थे तो छुप छुप के किया करते थे, और लेकिन जब हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ईमान ले आते हैं, कैसे वो मक्का के हर चीफ के घर में जाके दरवाज़ा खटखटा के बोलते हैं, मैंने उमर बिन खत्ताब ने इस्लाम कबूल कर लिया। और वो कैसे फिर पब्लिकली अपनी नमाज को कायम करते हैं, और कैसे हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु एक पिलर बन जाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे। तो काफ़ी कुछ बताया गया है इसमें। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पहली खिलाफत आप हज़रत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु को मिलती है, और उनकी वफ़ात के बाद जब वो खिलाफत हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास आती है, तो कैसे उनको अमीरुल मुमिनीन का लक़ब मिलता है, कैसे वो कैसरो किसरा के तख्त पलट के रख देते हैं। और इन सब में वो ऐसे डिसीजंस भी लेते हैं जो कि बहुत ही क्रिटिकल डिसीजन थे। शायद ही कोई हिम्मत करता उस वक्त पे वैसे डिसीजन लेने का कि जैसे आप हज़रत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु हर जंग में फतह होते चले जाते हैं, और वैसे कमांडर को पीछे बैकफुट पे खींच लेना और उनकी जगह पे किसी और कमांडर को भेज देना, ये जानते हुए भी कि खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अभी तक कोई जंग नहीं हारी, और कहीं इनको पीछे खींच लेना कहीं कोई गलत डिसीजन तो नहीं होगा। लेकिन वो जो डिसीजन होता है आप हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह के इखलास में और अल्लाह के यकीन में लेते हैं कि ये करने वाली ज़ात तो सिर्फ अल्लाह की है। तलवार बेशक खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु चला रहे हैं, लेकिन करने वाली ज़ात और जिताने वाली ज़ात अल्लाह जल्ल शानु की। और फिर कैसे कैसरो किसरा के तख्त पलट के रख देते हैं। सो यस, इसमें अभी काफ़ी कुछ है जो कि नहीं दिखाया गया है, एंड आई एम श्योर कि इसका कोई और सीक्वल भी होगा इस वीडियो का जहाँ पे इसके आगे की स्टोरी बताई गई हो। बट यस, इस वीडियो के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में, और वो स्पेशल चीज़
کہ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے لیے دعا کی اور دعا میں آپ نے 2 عمر میں سے ایک عمر کو مانگا. So yes, this was the video for today and I will be back soon with a different video. Till that time, please do take care of yourself and keep remembering me. Allah Hafiz.